Hello everyone. So tini all the Tiprasas who are gathered, all the Tiprasas who are staying in Delhi, most of us have gathered here. Some are not here, but through this video, we want to send a message to our Da David and all the Tiprasas living in Delhi and in Tripura and all the viewers who are seeing this video. As we know that on 5th of July, Da David has started on his historical foot march to Delhi, not for any political agenda, not for any personal gain, but for our people, for every one of us. So we have been keeping in touch with him, and we have been informed that he'll be in Delhi soon, most probably, if everything goes right, by 8th or 9th of September. He'll be in Delhi. So we want to send a message that whenever he comes to Delhi, we as a Tiprasas who are staying in Delhi will extend our help in whatever way we can, either small or big, any legal clearance, as if we want to book Jantar Mantar for the demonstration, legal process, medical help, or anything that permission that needs to be granted. Because here we have people working in Delhi Police, we have advocates here, we have medical team here, doctors are working. So everyone will be coming together as a whole to support our one common cause. So through this video, this is what we want to send a message to all the viewers seeing this video. Ani takut sari orang all di sekarang saya pikir, enggak kayak ansana musuhman kan kayak haisi, sini hai tongnai Tripura ni sini, senjata nas hai man tonggo, dar David Murasing, David Tim, sini warriors roh, borong ni sacrifice masing asik hai, taman nai buktawan angka, sini orang tongnai Delhi Tripura sa enggak, borong no orang lamsong na ni, seng cai tok laikha, seng kok sab laikha, tini minti no. Engkang kaya ang borong no bawa manokok kesana musunggo, Da David Murasing and bini tim no, norok hampir kaji Delhi wa, seng zaman sak orang cini Delhi Tripura sa tong nero, norok no cubanai, norok ni je legal process kaima jagawa, norok ni NUC nama jagawa, norok ni memorandum rema jagawa. By the grace of God, non blessing ni bising tei, non hamar ni bising tei, sang pinihan hai, nongkalai mantika, tei sini darakes, boni bo saksori tek hamka, bahai tabuk darakes ni saksori, ni apro doctor rok, ni kino terma pore hospital sama pore. Bahwa samale komika, kita tahu deh harus bisa dulu baru, mana kue ini tongkang. Apa nih himai mana kenapa? Mana? Mana sini dol orang senai sinai nai. By the grace of God, they nor ne jauh tu ni suri mani love mani, nor ne jauh tu ni sini bagi je, nor prek hele mani apa ni bising teh, nor dia mani bising teh sini darakes hai teh sa, makan sing kiri kiri kita kita hamil hai pika, ambagai jauh tu na pipe le hambai, teh ceng kena sarik rogo batini rogo baksa sung by join khabi benai tebo lama wo train by baksa pai tong sini suno loger na hinai borno bo lamsogo boro bo lama wo dera kodrong ya tui khainai lama wo dera ya tui khainai lama wo kuno kisu kebeng ongkri khainai chini jora sokpai nai sung by baksa ya preset tani bo loger iman hinai mone bagai bo prek hayo mone bagai bo dia yo hambai. By the grace of God, non blessing ni bising tei, non hamar ni bising tei, sang pinihan hai, nongkalai mantika, tei sini darakes, boni bo saksori tek hamka, bahai tabuk darakes ni saksori, ni apro doctor rok, ni kino terma pore hospital sama pore. Bahwa samale komika, kita tahu deh harus bisa dulu baru, mana kue ini tongkang. Apa nih himai mana kenapa?
mano মানে চিনি দল রকম নাইসিংলাইনাই by the grace of God tei norni jotoni suri mani lob mani norni jotoni sini bagi ja norok prek khale mani aboni bising tei norok dia mani bising tei sini dara kes hain hai tei sa makan sing kiri kiri kete kecha hamai thaipika ambagai jotono paiple hambai tei chang khana sarik rogo ba tini rogo baksa sangbai join khabi benai teibo lamao train bai baksa phai tong chini sono logerna hinai borno bo lamsobo boro bo lamao dera kodrong yatui khainai lamao dere yatui khainai lamao kono kisu kebeng mongkri khainai chini jora sokpai nai sangbai baksa ya preset tanibo logerei man khainai mone bagai bo prek khayo mone bagai bo diayo hambai Tini sajaro pano kaisa video mak like live onek din ni pore live khai jongo jara naitong nai rokno ani khaksang mate hamjak muya faro live khameni nahar mong ka mono je chini bubagra bai file khaijak supreme court o chini bc election no ruksawi supreme court o case khalaika sung 6 তারিখ অগাস্ট 2025 case number read petition number 0000786/2025 case registered aro unka 14 তারিখ o masni august 2025 ei petitioner to chini bubagra wansuka tiprasarokni je constitutional je solution eko constitutional rights जों जे अधिकार मानना तंगमानि भारतनि संविधाननि बिसिंथै या जों अधिकार मानियांगै दङ जेटा स्पेशली चिनि बिसि इलेक्शन नानि तंगमानि 4 बछर ngै दङ दाबो इलेक्शन खलाय जायगा गाय आबुनि बागैनो जों हाई कोर्टआवबो केस खलायका हाई कोर्टआव अलरेडी अर्डार इंजा जे दाक्ति के इलेक्शन खलायनायनि बागै बिसि इलेक्शन किन्तु तामनि बागै इलेक्शन डिपार्टमेंट ओ जगा चिनिति प्रसारकनि जे रां पैसा थांनानै बिसि जरा इकोनॉमिकली जों बेलेखन डिप्राइभ ngै दङ आबुनि बागै दाक्ति इलेक्शन खायदिहिन साजाकमानि यागुलोबो खलायलिया इलेक्शन के ताबुक सुप्रीम कोर्ट जों सालायनो बुबाग्रा बाय इलेक्शन कमिशन निथानी ते त्रिपुरा इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन जत्तो निथानी चिं सुप्रीम कोर्ट केस खामिनि परे ताबुक सुप्रीम कोर्ट मने इशू खायका इलेक्शन कमिशन जे हाई कोर्ट जे अर्डर रिजेक्ट मानी आबनो दाक्ति 4 सप्ताहनि बिसिंगनो 4 week ni bisingono o election no dakti khlaidi hinai notice rijaka abo जों saimano kai abono जों bubagrano belekeno hambai mario जों saimano chini bubagrano bebagno hamjago poito khlayo aboni muleno chini bubagrabo samung khai tongjao जों कोनो दिन compromise khlaya hoito tripura rajyo इलेक्शन खायना मुसुं जायगा
tangai khalai musung jaya abo जों मखल बायथां बेबागनो नुगुइ दङ फियाबा जों कुनु दिना तिप्रा सबाय बिट्रे खलायग्ला जों कुनु दिना कम्प्रमाइज खलायमानिया आबनो तिनि जिनि सुप्रीम कोर्ट केस खायै जों इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरकनो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नि बिसिंथै नोटिस हरजाकमानि आबो जिनि बुबाग्रा दङैनो जों सम्भबंगो गाबोन बागै तिप्रा सालुकरकनो जों अमनो कयनाम जोंगो किसा नाइसिंदि जिनि बुबाग्रा हाइनो आसुगुइ दंया सामुं खलाय दङ निनि आनि बागै যত तिप्रा सानि बागै जों जाहाथे जेभाবে पंचायत ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद जेभाবে म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रंगै थांबायखिया फिया चिनि तिप्रा सानि बागै इलेक्शन खलाय जायगा आव बेलेखेनो सेलें माइसिंसानि कक अबन बागैनो जों लीगल वे आइननोथ जों बाहायके आगुगैमान जों अब नाय दङ डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव जों फाइटिं खाय दङ जबा खलाय दङ जों लायथांनाय सालो गोबांमा जिनि हकां बालनाय रग एकेबा गोबांमा एनजिओस जेनेक्शन कमिटी अनहाय खलायनायखे किन्तु जिनि दफा यक सामानि मानिया गाबोन बागै जों जेहेतु डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव दङबा जों डेमोक्रेटिक सिस्टेमावनो फाइटिं माखायनाय जबा माखायनाय गै जबा जों खलायलाय दङ थैनांगौ तेबो मा खलायलायनाय जिनि बुबाग्रानि जे स्टेप नामानि अमनो जों बेलायखेनो जिनि महाराष्ट्र हामबाय मा जानोबो गै तिनि सुप्रीम कोर्ट बाय जे नोटिस रिजाकमानि जे 4 सप्ताहनि बिसिंगनो नर इलेक्शन पारिदिनि दाबो जों नायसिंलायनाय जिनि रिट पिटिशन फाइल खालायनाय तो जिनि बुबाग्रानो गै जिनि एडवोकेट गौरव केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट केस खामानि परनो तिनि हियरिंग गै हियरिंगनि अर्डर कपि तो फायाको हाइपानो जे नोटिस जारी खालायजाका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरकनो नोटिस रिका सुप्रीम कोर्ट जे हाई कोर्ट जे एज इट इज अर्डर रिजेक्ट मानी आबनो 4 सप्ताहनि बिसिंगनो एकेबा हाति बारब्रैनि बिसिंगनो इलेक्शन खायनानि उनथुहिनि साका दाबु नायगोना जुदि नियाहै जों देबो नेक्स्ट हियरिंग रखन जों नायसिंलायनाय फिया उमबायनो सामुं थांगानो हायके मा दंगो नादि जिनि जों अधिकार जिनि राइट मानना बागै जों तामो खलायना जों त्रिपुराव हाई कोर्ट दंबसे हाई कोर्ट ऑफ केस रिबो गावखना जायो दिनै सुप्रीम कोर्ट जों मा खायसिबो गाबोननि बागै जोंनि तिप्रा सारक वानसुंनानै नांगौ जों तामो खलायजागै दं जों त्रिपुराव गभर्नमेन्ट दङै दङ हिंपानो जों गभर्नमेन्ट कुनु दिनाव आशाया ते जों अ जागाव जिनि एकर्ड जे इमप्लिमेन्ट खलायनानै बागैसे जों नायसिंगै दङ जों सालसा जिनि अ हानि बुसा अ हानि नकफां जों हानि नकफां फानो जों रिफ्यूजीज रगनसे जिनि अधिकार सानै मा दंसो बेलेखेनो खाओ कस्टमा बेलेखेनो खा खामो खा दुख नांगौ जों अ हानि बुसा चिन्तानिसे जत अधिकार दङ तमनि किन्तु जिनि अधिकारनि बागै जों इलिगेल माइग्रेन्ट्स रगनि थानिसे जों जिनि अधिकार साना नांसियो गाय जों बर थांसोयखे आबनि बागै जों जत तिप्रा सारु लुकुरकनो जतनो जों थानसा थंबायदि अकगनो जों मासाव जों थानसा मा दंनाय हामबो हामियबो जत लुकुरकनो तुइनो जों थानसा तंनानि आबनो चिनबु बाग्रा जतनो रिक्वेस्ट खायो जरा सालसा अवश्य नायख्लाय तंनाय काइटर गड जेसेबानो हिंदी बो जोंनो सालसा मो थांनायनो किन्तु जोंसे थानसा मा तंनाय राग मा तंनाय कुबुय मा तंनाय धैर्य मा रमनाय कारण कायसा एकर्ड आबो इमप्लिमेन्ट इंनानि आबो फातसाखा इंगै थांया आबो जों बेबागनो सायमानो गै जों किसा मा नायसिंलायनाय धैर्य मा रमलायनाय जाते सिनि बरक सिनि लुकुरक सिनि तिप्रा सारक सिनि अधिकारनो मानना तै गै बुबाग्रानो हाइन हयतेसा हामबाय ते थेंक्स मायाफारो जे जोंनो आमसके लगिरि तंमानि बागै जों जेबाबे सुप्रीम कोर्ट ओ केस तिनि कासा जाका जेबाबे तिनि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ते इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरगन इशू जारी खाय जाका
जे नों दा 4 सप्ताहनि बिसिङाव भिलेज कमिटि इलेक्शन खालायदिनि जे दागिमु आबो चिनि बागै गाहामनो तै अबनो प्रमाण जों सरकाराव तंफानो जों कुनु दिनो कम्प्रमाइज खालाया आबनो दिनैनि इस्युनि मेइन प्रमाण फाइनान्सियलावबो जों बुबाग्रानि बिसिं दिनो जतन साइमोन जों एकर्ड जुदि इमप्लिमेन्ट खालायजायो अबশ্যই जों आन्दोलन खालायनाय चिनि तिप्रासानि बागै जों कुनु दिन तिप्रासावहाय बिट्रे खालाया जों नांखाय जों सरकारनिबो याकारि फायनाय आबो जों जत रेडि दङ शुधु जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सिमी एकेबा सेन्ट्रेल लो जे आसुक दंनाय होम मिनिस्टार संसिमिसे जों आसा जों बरक बायदि कक सावि दङ जों अरनि बाय कुनु ककरि जों डाइरेक्ट सेन्टार बाय कक सावि दङ गैतिनि सेन्टार जों कक सालाय दंमानि लगे लगे चिनि बिसि इलेक्शननि बागैबो जों सुप्रिम कोर्टआव केस खायमानि बायनो जों दिनै रिजाल्ट धोरग मानाय दङ बे सालसा अम हाइके नायसिंगि दंखाय त्रिपुरानि तिप्रासाराव अबশ্যই सालसा यक्समा माननाय आबनि बागै गोबां बर' गोबां राजनीति बदल गोबां कक सारायनो गोबां एनजिओस गोबां पार्सनेल भिउस गोबां बर'नो कक साइ दं किन्तु आबरगनो जों आसक खुनजु कान्यावै चिनि बुबाग्रा जे लामातै जों हिमलिवि दङ जों आ लामातैनो थानसाखै जतनो खाबाकसाखै बेसकांगो जों हिमलायनाय और जों मुकेश रियांग सर जों एलायंस याकारै चाव चिनि एकॉर्ड साइन खाइमा रक यूजलेस उमखा मुकेश नो नां सारनि मुसुंगो जों एकॉर्ड खाइमानि आसक बालैखौ त्रिपुरा हाव सिमिया सारा भारतबर्षबो गोबांमा एकॉर्ड दङ किन्तु एकॉर्ड इमप्लिमेन्ट खालायते किजा जरा नांगौ तेइसे चिना रखायतो केबेंनाय रक दङबा केबेंनाय रक दंमानि बागै सेन्टार संबो फातसाखै मानिया नरक साविमान चिनि जेफ्रु टिजिएस सं चिनि तिप्राहानि तिप्रासारावनो मोथांनानि बागै एडिसि हापां एडिसि जे खालायमानि 6 शिड्यूल जे सनामानि आजरावबो एकॉर्ड उमफानो फातसानो एकॉर्ड रिविडिया जरा नांखा गमहायनो ओ एकॉर्डबो अबশ্যই जरा नांफानो सालसा जों माननायनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि उपराव जों आसा दङ होम मिनिस्टार संनि उपराव जों आसा दङ जों सालसा अबশ্যই माननाय किन्तु अ जागानि हापां बायले जों कुनु माननानि ते आसा नांगिरे किन्तु जों ताबुक अबनो चिनि बुबाग्रानि लगियो बेबाक्ति प्रसाद थानसाखै बासावै दंनानै आबनो चिनि फान आबनो चिनि हाथियार थानसानो चिनि जबा थानसानो चिनि अस्त्र आमनो जत तिप्रासा लुग्रकनो आं पयनानि मुचुंगो दंबायदि सुस्थखे जाते चिनि बुबाग्रा चिनि लगी दंगिबो बो खाबायातिखै चिनि फान क्राखै जों थानसाखै फाइनान्सियलाव तेबो कतर सबनो जों मा कारिलायनाय मा खालायलायनाय जत लुग्रकनो हामबाय ते चिनि बुबाग्रानो हामबाय मारियो जे जों दिनै सुप्रिम कोर्टआव थांगै अबाहायखै 4 सप्ताहनि बिसिङाव इलेक्शन खालायदि हिनजाकमानि आबो कम कगिया हायनि बागै जों चिनि लुग्रकनो जत अमहायखिनो बुबाग्रानो लगिरि तनानि बागै जतनो कयो हामबाय बेलायखिनो जत काम करन दंबाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आई हैव कम ऑन फेसबुक लाइव अभी आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी बात बोलने के लिए। देखिए, मैंने नोटिस किया है पॉलिटिक्स में कि बहुत लोग हैं जो पॉलिटिक्स के नाम में हमें डिवाइड करते हैं। जब मैं हमें बोलता हूं, मैं तिप्रासा के बारे में बात कर रहा हूं। प्राइवेटली हम लोग सब बोलते हैं कि हमें कॉकबोरॉक रोमन स्क्रिप्ट में चाहिए। आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सब लोग अग्री करते हैं। प्राइवेटली सब लोग अग्री करते हैं कि एडीसी में हम लोगों को जमीन का अधिकार चाहिए।
प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं, आप कोई भी पार्टी से हो, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, मोथा, आईपीएफटी, कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं कि त्रिपुरा में हमें तिपरासा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिलना चाहिए। प्राइवेटली सब करते हैं, लेकिन पब्लिकली जब तक हम लोगों को हमारे मालिक से, हमारे बॉस से, मेरा तो बॉस सिर्फ भगवान है, लेकिन बहुत लोगों का बॉस कोई और है, अनुमति या ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, हम लोग कुछ बोलते नहीं है, दिल के अंदर ही रखते हैं और अंदर से अंदर, सबके अंदर, मतलब कि प्राइवेटली बात करेंगे, लेकिन कैमरा के सामने कोई बात नहीं करता। और जो बात करता है, जैसे मैं, तो मुझे गाली भी सुनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता मैं क्या बोलता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बोलता हूं तो उनको दिल में चोट लगता है, लेकिन मुझे तो बोलना है। आज मैं यहां में फेसबुक लाइव तिपरा मोथा का फाउंडर बन के नहीं करना चाहता हूं, मैं आपका बुबागरा बन के बात करना चाहता हूं। आपको एक खबर देना है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन 5 साल से पहले बोला गया कि वीसी इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कोविड है। उसके बाद बोला कि जो ब्रू हमारे रिहेबिलिटेटेड उसके लिए नहीं हुआ। उसके बाद कुछ और वजह दिया गया, उसके बाद कुछ और वजह दिया गया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि करो, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला करेंगे, उसके बाद नहीं किया। तब हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि एक तारीख दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद थोड़े दिन पहले फिर से हाई कोर्ट में मैंने कहा कि आप फिर से फॉलो अप कीजिए। तो पहला डेट में चीफ जस्टिस त्रिपुरा में नहीं था, सेकेंड डेट में कुछ और रीजन आया, तीसरा डेट में चीफ जस्टिस ट्रांसफर हो गया। तो जैसे जो सनी देओल का पिक्चर था ना, वो दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये भी फिल्म जैसा ही बन चुका था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज आज। तो मैंने कहा अपने तिपरासा लॉयर्स को कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप अपने नाम में मत केस फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आप तो अलायंस पार्टनर है, लोग क्या बोलेंगे। देखो, मैं पहले, मेरा पहला लॉयल्टी आपके साथ, तिपरासा के साथ है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने केस फाइल किया और आज आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा, आई एम गिविंग यू गुड न्यूज कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बेंच में चीफ जस्टिस ने स्टेट गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का नोटिस दिया है जवाब देने के लिए कि त्रिपुरा में विलेज काउंसिल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई। 4 हफ्ते का नोटिस दिया गया। अब 4 हफ्ते के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर रहे थे, क्या वजह था। और अब ये सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात गया है और चीफ जस्टिस ने नोटिस इश्यू किया है, स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। देखो, first of all, I would like to thank my lawyers, Gopal Shankar Narayan. Thank you. Senior advocate हैं सुप्रीम कोर्ट में. Advocate on record, Mr. Kejriwal, I want to thank. मेरे मित्र हैं खान साहब, उन्होंने हेल्प किया, उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं. और मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार, जिंदगी में अगर अपने लोगों के लिए आवाज उठाना है तो डरना नहीं चाहिए कि आप कौन से पार्टी में हो, आपका पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए. आपको सोचना चाहिए कि जब मैं मरूंगा तो मुझे पूछने वाला कौन होगा. मुझे पूछने वाला मैं जानता हूं कौन है, वो आप लोग हैं. तो मैं थक चुका हूं.
और मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। और अगर किसी को खराब लगता है तो लगने दो। मेरे ऊपर भगवान है, देयर इज गॉड। एंड अगर मुझे लगता है कि मैं गरीब लोगों के लिए आवाज उठाता हूं और इसके लिए पॉलिटिकली मुझे नुकसान होगा, तो मैं पॉलिटिकली नुकसान को लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने लोगों के साथ बिट्रेयल या गद्दारी नहीं कर सकता। वीसी इलेक्शन अब होगा, आप लोग तैयारी कीजिए। और एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूं, हमको भी सीखना चाहिए। एज इंडिजिनस पीपल वी शुड लर्न। जब हमारा कॉमन इंटरेस्ट आता है, हमारा बच्चे का भविष्य आता है, तो हमको नागा से सीखना चाहिए, मीजो से सीखना चाहिए कि वो पहले अपने कम्युनिटी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, उसके बाद कोई भी पार्टी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। हम लोग प्राइवेटली सब अग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली हम लोग बात नहीं करते। जब मैं बैंगलोर जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, मुंबई जाता हूं, जब मैं गुवाहाटी आता हूं, मैं देखता हूं हमारे बच्चे लोग, हमारे यूथ लोग, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई कुक का काम कर रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई लेबरर का काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आप लोग यंगस्टर्स हैं, और जो आपके माँ बाप या आपने कुक का काम किया, ड्राइवर का काम किया, सिक्योरिटी का काम, सुप्रभात। त्रिपुरा में त्रिपुरा का जनता का जीत हुआ, त्रिपुरा में तिपरासा लोगों का जीत हुआ। और आज मैं खुशी का वार्ता लेके आज फेसबुक लाइव में आया हूँ। अगरतला से दिल्ली तक का ये जो पैदल मार्च का जो मूवमेंट कर रहा हो, तिपरासा एकॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन का, जस्टिस के लिए, इलीगल माइग्रेशन का खिलाफ हमारा जो मुहिम है उसके लिए, और ग्रेटर त्रिपुरालैंड अपना जो मुद्दा है तिपरासा को बचाने का, परमानेंट सॉल्यूशन का मुद्दा को लेकर। लेकिन इसी बीच हमारा महाराजा की एक फ़ोन कॉल के थ्रू एक खुशी का वार्ता हमारा तक पहुंचा है। ये वार्ता ये सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मैं त्रिपुरा का जनता और तिपरासा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग सभी लोगों को मालूम है, पिछले 10 साल से त्रिपुरा में विलेज काउंसिल का इलेक्शन रद्द करके रखा है जानबूझ के स्टेट गवर्नमेंट। आज सुप्रीम कोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ त्रिपुरा के ऊपर फटकार लगाया और अपना राय दिया। सुप्रीम कोर्ट, महाराजा ने खुद पिटीशन फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज राय दिया कि अगले 4 हफ्ते के अंदर, विद इन द 4 वीक्स, आप विलेज कमेटी इलेक्शन आप करवाइए, नहीं तो चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, त्रिपुरा की जो इलेक्शन कमीशन और त्रिपुरा की सेक्रेटरी के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी किया गया कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसका मतलब है कि विलेज कमेटी इलेक्शन अब राज्य सरकार को मजबूरी में करना ही पड़ेगा। और ये तिपरासा और त्रिपुरा का जनता का जीत है, डेमोक्रेसी का जीत है। और हम सब समय इसीलिए भारत का झंडा लिए, भारत का संविधान और महात्मा गांधी को राह लिए, हम सब समय हम अपना आंदोलन को एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ, भारत माता की संतान होने के नाते गर्व के साथ हम अपना दावे को और अपना जो तिपरासा का मुद्दे को सब समय हम आगे रखने का कोशिश करते, संवैधानिक तरीके से और डेमोक्रेटिक वे से। आज तिपरासा एकॉर्ड के लिए भी मैं यही कर रहा हूँ, ग्रेटर त्रिपुरालैंड में मैं यही करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बाद बाकी बड़ा बड़ा लीडर लोगों को करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में हम खुद निकलना पड़ रहा है। और आज महाराजा जो दिल्ली में आते जाते रहते, हमारा लिए जो काम करते रहते, उसका एक छोटा सा तोहफा और छोटा सा रिजल्ट तिपरासा लोगों को मिला है। और आप लोगों को खुश होना चाहिए कि महाराजा जैसे लीडर मिला, उनका नेतृत्व में हम जैसा लोग आंदोलन करने का आज मौका मिला। पहले दूसरा लोगों का नेतृत्व में आंदोलन करने का भी हमको मौका नहीं मिला। आज महाराजा के नेतृत्व में हमको आंदोलन करने के लिए रोका टोका नहीं जाता, हेल्प किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है महाराजा की तरफ से। और इसीलिए मैं कहता हूँ
आप स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट चीफ सेक्रेटरी को उनको झुकना पड़ा। हमारा विश्वास और प्यार और दुआ के आगे, और विलेज कमेटी निर्वाचन होगा, अभी इलेक्शन होगा, और वहाँ पे भी त्रिपुरा का ही, त्रिपुरा का लोगों का ही जीत होगा। ये मुझे भरोसा और विश्वास है। हम लोगों को भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम लोगों का जो विश्वास है, हम लोग का जो उम्मीद है, वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और इसी तरीके से त्रिपुरा एकॉर्ड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और इलीगल माइग्रेशन का इशू भी हम लोग का आंदोलन और एकता के माध्यम से ज़रूर एक दिन रिजॉल्व होगा। और आप लोग सभी लोगों को फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को, महाराजा को भी धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को फिर से मैं बुलाना चाहूँगा कि आप लोग पार्टी छोड़ दीजिए, आप लोग अपना पार्टी मत देखिए, पहले जाति के बारे में सोचिए। 21 का 21 त्रिपुरा से एमएलए को मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं कॉल करना चाहता हूँ, पार्टी मत देखिए। आप जाति को देखकर हमारा सॉल्यूशन रिजॉल्व करने के लिए, अगर बोबाग्रा अकेला ये कर सकते हैं, अगर मैं चूहा बन के शेरों का काम करने का लिए दिल में ठान लेके आप चल सकता हो, तो आप लोग तो शेर है, आप लोग तो हाथी है, आप लोग तो बड़ा बड़ा लीडर है। आप लोग एक साथ 21 एमएलए, 21 मंत्री एक साथ आएगा तो क्यों नहीं हमारा सॉल्यूशन रिजॉल्व होगा। आप लोग को फिर से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूँगा, 9 तारीख में ज़रूर दिल्ली में हमारा आंदोलन के साथ आप लोग एक साथ आइए, नहीं तो आप लोग जनता को भूल जाएंगे। जिस जनता ने आपको सपोर्ट किया था, उसी जनता को आप लोग धोखा देगा तो जनता आप लोग को भूल जाएंगे अगले चुनाव में और अगले दिन में। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो छोटा सा जीत है, बड़ा जीत अभी बाकी है। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बहुत कुछ होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारा अधिकार, हमारा डिमांड हम लोग ज़रूर लाएंगे। और आप लोग रेडी हो जाइए त्रिपुरा लोग, त्रिपुरा का जीत के लिए, त्रिपुरा का जीत के लिए। और ये बीसी इलेक्शन वो लोग 4 हफ्ते के अंदर जैसे भी करके उनको रिप्लाई देना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आए हैं, और महामाननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान के ऊपर हम विश्वास रखते हुए गर्व से बोल सकते कि हम भी भारत माता का संतान है। और भारत के संविधान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग को, न्याय के ऊपर हम लोग को सब समय विश्वास रखना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ हम अभी और उम्मीद के साथ दिल्ली में और ज़ोरदार से हम लोग पैदल मार्च करके जाएंगे। और बीसी इलेक्शन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए त्रिपुरा लोग, जो भी पार्टी हो, लेकिन जीत त्रिपुरा का होना चाहिए। जो भी राजनीति हो, जो भी नेता हो, लेकिन त्रिपुरा जाति पहले आगे होना चाहिए। त्रिपुरा जाति, त्रिपुरा का लोग पहले आगे होना चाहिए, बाद में पार्टी होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू बोबाग्रा, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थैंक यू भारत का संविधान। हम भाई বছর বামফ্রন্ট সরকার এই দীর্ঘ কংগ্রেসের সরকারও যে মায়া তখন চিনি ত্রিপুরা যে বঞ্চিত মানে जों ताबो चिनी त्रिपुरा कुसुमनि लामा दिगो थांतंगो चिनी बरक दीर्घदिन बरक जतन साइमने मेडिरक चिनी बरक मासाया मानंगिया लामा करुई तै करुई न करुई हुक करुई चिनी सरकार थाइमनि पड़े चिनी बरक रंग बगै लामा काहाम खाइका तैनि व्यवस्था खाइका स्कूल व्यवस्था खाइका चिनी त्रिपुरा रंग जों ताबो बेयावनो लामा दिगो थांतंगो आबनो चिनी बस्तांगो जों एडीसी फाइनाय पड़े चिनी 125 तम बिल जों चालू खाई बसकांग एडीसी चिनी मुद्दा बसकांग चिनी एडीसी निर्वाचन जों बर'फोरनि बसकांग चिनी परराष्ट्र मंत्री चिनी अमित शाह जी जों बसकांग जों एडीसी इलेक्शन फाइव पड़ा चिनी 125 तम बिल जों चालू खाई। बेसिकली मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा था कि किसी लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एडीसी में जब एक पार्टी दूसरा पार्टी आ जाए पावर में तो 125th अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है, लेकिन क्योंकि इतना सीनियर, इतना इम्पोर्टेंट लीडर ये स्टेटमेंट दे रहा था, तो मुझे लगा कि मैं होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में फोन कर पूछूं कि ये जो सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दिया है
कि अगर एक पार्टी पावर में आ जाए तो 125th अमेंडमेंट त्रिपुरा में पास हो जाएगा। तो मुझे लगा कि दिल्ली में फोन कर मैं मालूम करूं क्या हो रहा है। तो मैंने दिल्ली में फ़ोन किया एंड जब मैंने फ़ोन किया तो होम मिनिस्ट्री में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। भाई एक बहुत सीनियर इम्पोर्टेंट लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली से आने के बाद, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये तो बोडोलैंड के लिए है, कार्बी आंगलोंग के लिए है, दिमासा हसाओ के लिए है, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, लाई के लिए है, लारमा के लिए है, खासी हिल्स के लिए है, गारो हिल्स के लिए है, जयंतिया हिल्स के लिए और टीटीएडीसी के लिए है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा के संग कैसे हो सकता है, बोडो के लिए है। तो मैंने कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि ये तो एकदम मतलब कि बेबुनियाद स्टेटमेंट है, आप इसको सीरियसली ना लें। तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को, क्योंकि इतना जब बड़ा लीडर, इतना सीनियर, इतना मतलब कि हाई रैंकिंग लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो हमें तो क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैंने ये बात उनसे दिल्ली से बात करके मुझे लगा कि इतने रात में भी आपको क्लैरिफाई करना कि ये इलेक्शन से लिंक नहीं है। और ये जो 125th अमेंडमेंट बिल अगर कभी भी लागू होगा तो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, एक दिन एक संग एक ही टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू। तो आई थिंक दैट, और दे वर शॉक्ड, उनको भी लगा कि ये ऐसा कौन, आप मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो भी बोले कि नहीं ये तो बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप इसको सीरियसली मत लीजिए। तो बस मुझे लगा कि हमारे जो तिपरासा है, जो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो तिपरासा है ना, ये बहुत मतलब कि जो 1970 का जो तिपरासा था, 1980 का जो तिपरासा था, जो गांव में रहता था, जो 1990 में था, वो मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं था, जिनको कुछ मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है। बहुत लोगों को लगता है कि वो तिपरासा आज भी 2025 में वैसे ही तिपरासा है। लेकिन मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको शायद लगता है कि तिपरासा बेवकूफ है, पहले जैसा मासूम है, नादान है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि तिपरासा बेवकूफ है, लेकिन जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो बेवकूफ तिपरासा नहीं लगता, बेवकूफ आप लगते हैं। आप सबके सामने यू लुक वेरी सिली, यू लुक लाइक इट लुक्स वेरी फूलिश। प्लीज नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट्स देने से कानून थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिए, क्योंकि आज का तिपरासा इतना बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी स्टेटमेंट दे और हम लोग विश्वास कर ले। हम लोग के पास भी अब लॉयर्स है, हम लोग के पास भी आज एजुकेटेड यंगस्टर्स है। आज का यंगस्टर बेवकूफ नहीं है। तो प्लीज अगर आपको खुद को बेवकूफ नहीं बनाना है तो सोच समझ के, पढ़ के, लिख कर ऐसा स्टेटमेंट्स दीजिए। एनीवे मैं आशा करता हूँ कि जब ये 125th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, बोडोलैंड के लिए, कार्बी आंगलोंग के लिए, दिमासा हसाओ के लिए, खासी गारो जयंतिया हिल्स के लिए, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, लाई मारमा के लिए, उनके लिए भी अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जल्द से जल्द करे, ना कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि जितना वो लंबा खींचेंगे बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देंगे और बाद में नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा। क्योंकि उनका दिल्ली में तो उनका दिल ठीक है, लेकिन उनके राज्य में जैसे अभी आज जो स्टेटमेंट आया है, उनके जो वर्कर्स हैं, कुछ लोग का थोड़ा सा थिंकिंग में और सोच में या एजुकेशन में थोड़ा सा कमी है। एनीवे नो प्रॉब्लम,
मुझे लगा कि आप रात में ठीक से বছর বামফ্রন্ট সরকার এই দীর্ঘ কংগ্রেস সরকার যে মায়া তখন চিনি ত্রিপুরা যে বঞ্চিত মানে जों दाबो चिनि ত্রিপুরা कुसुमनि लामा दिगो थांतंगो चिनि बरक दीर्घदिन सरकारनो साइमने मेडिरक चिनि बरक मासाया मानोया लामा करुई तुई करुई नक करुई हुक करुई चिनि सरकार फेमानि पड़े चिनि बररंनि बागै लामा गाहाम खायका तुईनि व्यवस्था खायका स्कुलनि व्यवस्था खायका चिनि त्रिपुरा रंनो जों दाबो बेयावनो लामा दिगो थांतंगो आबनो चिनि बसनांगो जों एडिसि फाइनाय पड़े चिनि 125 तम बिलनो जों चालू खायनाय बसनांगो एडिसि नै चिनि मुद्दा बसनांगो चिनि एडिसि निर्वाचन जों बर'फोरनिका बसनांगो चिनि परराष्ट्र मन्त्री चिनि अमित शाह जी जों बसनांगो जों एडिसि इलेक्शन फाइनाय पड़े चिनि 125 तम बिलनो जों चालू खायनाय बेसिकली मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा था कि किसी लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एडीसी में जब एक पार्टी दूसरा पार्टी आ जाए पावर में तो 125th अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है, लेकिन क्योंकि इतना सीनियर इतना इम्पोर्टेंट लीडर ये स्टेटमेंट दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में फोन कर पूछूं कि ये जो सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक पार्टी पावर में आ जाए तो 125th अमेंडमेंट त्रिपुरा में पास हो जाएगा। तो मुझे लगा कि दिल्ली में फोन करके मालूम करूं क्या हो रहा है। तो मैंने एंड जब मैंने फोन किया तो होम मिनिस्ट्री में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं ऑफिशियल्स होते हैं मैंने उनको फोन किया। एक बहुत सीनियर इम्पोर्टेंट लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली से आने के बाद, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये तो बोडोलैंड के लिए है, कार्बी आंगलोंग के लिए है, दिमासा हसाओ के लिए है, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, लाई के लिए है, लारमा के लिए है, खासी हिल्स के लिए है, गारो हिल्स के लिए है, जयंतिया हिल्स के लिए और टीटीएडीसी के लिए है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा के साथ कैसे हो सकता है, बोडो के लिए है। तो मैंने कहा उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया तो इन्होंने कहा कि ये तो एकदम मतलब कि बेबुनियाद स्टेटमेंट है, आप इसको सीरियसली ना लें। तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को इतना जब बड़ा लीडर इतना सीनियर इतना मतलब हाई रैंकिंग लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो हमें तो क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैंने ये बात उनसे दिल्ली से बात करके मुझे लगा कि इतने रात में भी क्लैरिफाई कर दो कि ये इलेक्शन से लिंक नहीं है और ये जो 125th अमेंडमेंट बिल अगर कभी भी लागू होगा तो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, एक दिन एक संग एक ही टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू। तो आई थिंक दैट और उनको भी लगा कि ये ऐसा कौन, आप मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो भी बोले कि नहीं ये तो बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप इसको सीरियसली मत लीजिए। तो बस मुझे लगा कि हमारे जो तिप्रासा है, जो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो तिप्रासा है ना ये बहुत मतलब कि जो 1970 का जो तिप्रासा था, 1980 का जो तिप्रासा था जो गांव में रहता था, जो 1990 में था, वो मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं था, जिनको कुछ मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है। बहुत लोगों को लगता है कि वो तिप्रासा आज भी 2025 में वैसे ही तिप्रासा है। लेकिन मैं लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको शायद लगता है कि तिप्रासा पहले जैसा मासूम है नादान है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि तिप्रासा बेवकूफ है, लेकिन जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो बेवकूफ तिप्रासा नहीं लगता है, बेवकूफ आप लगते हैं। आपके सामने बहुत
मतलब পাঁচ कि বছর you ধরে look যে very ইলেকশন silly. ইয়া You look ভিলেজ like কমিটি নির্বাচন it looks very যেটা foolish. চিনি ত্রিপুরাসানি So যে please next time অধিকার statements देने से पहले ত্রিপুরাসা আম थोड़ा যেন सा ডেভেলপ कानून খাইনা पढ़ গাকাই लीजिए, थोड़ा যে सा সামু খাইনা দরকার कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिए, क्योंकि ও সামু आज का त्रिपुरासा इतना बेवकूफ नहीं है সম্ভব উনখা कि आप कुछ भी स्टेटमेंट दें और हम लोग पेटिशन फाइल खाई केस फाइल हम खाई लोग के पास भी अब लॉयर्स है, डायरेक्ट हम लोग के पास भी आज एजुकेटेड यंगस्टर्स है। आज का यंगस्टर बेवकूफ नहीं है, तो प्लीज অবনি সেকাঙ্গ अगर তো आपको কবং মানে खुद को बेवकूफ नहीं बनाना है গট গট সানাই तो सोच समझ के पढ़ के लिख कर ऐसा বুকু स्टेटमेंट বাই সিমি সামু Anyway, मैं आशा करता हूँ कि जब ये 125th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, बोडोलैंड के लिए, कार्बी आंदोलन के लिए, दिमासा हसाव के लिए, खासी गारो जयंती हिल्स के लिए, चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, लाए मारमा के लिए, उनके लिए भी अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जल्द से जल्द करे, ना कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि जितना वो लंबा खींचेंगे बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट देंगे और बाद में नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा, क्योंकि उनका दिल्ली में तो उनका दिल ठीक है, लेकिन उनके राज्य में जैसे अभी आज जो स्टेटमेंट आया है, उनके जो वर्कर्स हैं कुछ लोग का थोड़ा सा थिंकिंग में और सोच में या एजुकेशन में थोड़ा सा एनीवे नो प्रॉब्लम। मुझे लगा कि आप रात में ठीक से सोइए और ऐसे लोगों को सीरियसली मत लीजिए, मैं भी सीरियसली नहीं लेता हूँ, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री भी सीरियसली नहीं বছর বামফ্রন্ট সরকার এই দীর্ঘ কংগ্রেসের সরকারও যে মায়া তমনে চিনি ত্রিপুরাসারক যে বঞ্চিত মানে जों তাবো যিনি ত্রিপুরাসারক খুসুলি লামা দিকে থামতঙ্গ চিনি বরক দীর্ঘদিন ধরো যতন সাইমনে মেডিরক চিনি বরক বাসাইয়া মানইয়া লামা করুই তুই করুই নখ করুই হুক করুই চিনি সরকার ফ্যামিলি পড়ে চিনি বড় রঙে বাগৈ লামা কাহাম খাইকা তুইনি ব্যবস্থা খাইকা স্কুল ব্যবস্থা খাইকা চিনি ত্রিপুরাসারক রঙ সন্তাবো बेयावनो लामा दिखे थांतंगो आबोनो चिनि बसकांगो जों एडिसि फाइनाय एडिसि फाइनायनि परे चिनि 125 तम बिल जों चालू खायनाय बसकांगो एडिसि बे चिनि मुद्दा बसकांगो चिनि एडिसि निर्वाचन चिनि जों बर'फोरिका बसकांगो चिनि परराष्ट्र मन्त्री चिनि अमित शाह जी जों बसकांगो जों एडिसि इलेक्शन फाइनाय परे चिनि 125 तम बिल जों चालू खायनाय बेसिकली मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा था कि किसी लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एडीसी में जब एक पार्टी दूसरा पार्टी आ जाए पावर में तो 125th अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है, लेकिन क्योंकि इतना सीनियर इतना इम्पोर्टेंट लीडर ये स्टेटमेंट दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में पूछूं कि ये जो सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक पार्टी पावर में आ जाए तो 125th अमेंडमेंट त्रिपुरा में पास हो जाएगा। तो मुझे लगा कि दिल्ली में फोन करके मैं मालूम करूं क्या हो रहा है। तो मैंने दिल्ली में फोन किया एंड जब मैंने फोन किया तो होम मिनिस्ट्री में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, मैंने उनको फोन किया। एक बहुत सीनियर इम्पोर्टेंट लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली से आने के बाद, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं? तो होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये तो बोडोलैंड के लिए है, कार्बी आंगलोंग के लिए है, दिमासा हसाव के लिए है, चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, लाई के लिए है, लारमा के लिए है, खासी हिल्स के लिए है, गारो हिल्स के लिए है, जयंतिया हिल्स के लिए और टीटीएडीसी के लिए है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा के संग कैसे हो सकता है, बोडो के लिए है। तो मैंने कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये तो एकदम मतलब कि बेबुनियाद स्टेटमेंट है, आप इसको सीरियसली ना लें। तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को इतना जब बड़ा लीडर इतना सीनियर इतना मतलब हाई रैंकिंग लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो हमें तो क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैंने ये बात उनसे दिल्ली से बात करके मुझे लगा इतने रात में भी आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये इलेक्शन से लिंक नहीं है,
और ये जो 125th अमेंडमेंट बिल अगर कभी भी लागू होगा तो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, एक दिन एक साल एक ही टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू होगा। कैरियर मेकिंग तो आई थिंक दैट, और दे वर शॉक्ड, उनको भी लगा कि ये ऐसा कौन, आप मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो भी बोले कि नहीं ये तो बहुत मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप इसको सीरियसली मत लीजिए। तो बस मुझे लगा कि हमारे जो तिप्रासा है, जो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो तिप्रासा है ना, ये बहुत मतलब कि जो 1970 का जो तिप्रासा था, 1980 का जो तिप्रासा था, जो गांव में रहता था, जो 1990 में था, वो मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं था, जिनको कुछ मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है, बहुत लोगों को लगता है कि वो तिप्रासा आज भी 2025 में वैसे ही तिप्रासा है। लेकिन मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको शायद लगता है कि तिप्रासा बेवकूफ है, पहले जैसा मासूम है, नादान है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि तिप्रासा बेवकूफ है, लेकिन जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो बेवकूफ तिप्रासा नहीं लगता, बेवकूफ आप सबके सामने बहुत मतलब कि you look very silly, you look like it looks very foolish. तो please next time statements देने से पहले थोड़ा सा कानून पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिए, क्योंकि आज का तिप्रासा इतना बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी स्टेटमेंट दे और हम लोग के पास भी अब लॉयर्स है, हम लोग के पास भी आज एजुकेटेड यंगस्टर्स है। आज का यंगस्टर बेवकूफ नहीं है। तो प्लीज अगर आपको खुद को बेवकूफ नहीं बनाना है तो सोच समझ के, पढ़ के, लिख कर ऐसा स्टेटमेंट दीजिए। एनीवे, मैं आशा करता हूँ कि जब ये 125th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए, बोडोलैंड के लिए, कार्बी आंगलोंग के लिए, दिमासा हसाव के लिए, खासी गारो जयंती हिल्स के लिए, चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, लाई मारमा के लिए, उनके लिए भी अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जल्द से जल्द करे, ना कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि जितना वो लंबा खींचेंगे बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देंगे और बाद में नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा। क्योंकि उनका दिल्ली में तो उनका दिल ठीक है, लेकिन उनके राज्य में जैसे अभी आज जो स्टेटमेंट आया है, उनके जो वर्कर्स हैं, कुछ लोग का थोड़ा सा थिंकिंग में और सोच में या एजुकेशन में थोड़ा सा कमी है। एनीवे, नो प्रॉब्लम, आप रात में ठीक से सोइए और ऐसे लोगों को सीरियसली मत लीजिए। मैं भी सीरियसली नहीं लेता हूँ, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री भी सीरियसली नहीं लेता है। और बामफ्रम सरकार दीर्घ कांग्रेस सरकार जे माया तमने चीन तिप्रासार जे वंचित मणि जों तबो चीनी तिप्रासार कुसुमनि लामा दिगो थांतंगो चीनी बरफ दीर्घ दिन जतन साइमने मेडिरक चीनी बरफ मासाया मानोया लामा करुई तै करुई न करुई हुक करुई चीनी सरकार थाइमनि पड़े चीनी बड़ रंग बगै लामा काहाम खाइका क्लिनिक व्यवस्था खाइका स्कूल व्यवस्था खाइका चीनी तिप्रासार रंग संताबो बियावनो लामा दिगो थांतंगो आबनो चीनी बस्तांगो जों एडीसी फाइनाय पड़े चीनी 125 तम बिल जों चालू खाइनाय बस्तांगो एडीसी बे चीनी मुद्दा बस्तांगो चीनी एडीसी निर्वाचन जों पुरोहित बस्तांगो चीनी परराष्ट्र मंत्री चीनी अमित शाह जी जों बस्तांगो जों एडीसी इलेक्शन फाइनाय पड़े चीनी 125 तम बिल जों चालू खाइनाय। बेसिकली मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा था कि किसी लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि
जों जे ताबो एडीसी में जब एक पार्टी दूसरा पार्टी आ जाए पावर में तो 125th अमेंडमेंट बिल पास हो जाए। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है, लेकिन क्योंकि इतना सीनियर इतना इम्पोर्टेंट लीडर ये स्टेटमेंट दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में फोन कर पूछूं कि ये जो सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक पार्टी पावर में आ जाए तो 125th अमेंडमेंट त्रिपुरा में पास हो जाए। तो मुझे लगा कि दिल्ली में फोन करके मैं मालूम करूं क्या हो रहा है। तो मैंने दिल्ली में फोन किया एंड जब मैंने फोन किया तो होम मिनिस्ट्री में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं ऑफिशियल्स होते हैं मैंने उनको फोन किया कि भाई एक बहुत सीनियर इम्पोर्टेंट लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली से आने के बाद, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स है ऑफिसर्स है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये तो बोडोलैंड के लिए है, कार्बी आंगलोंग के लिए है, दिमासा हसाओ के लिए है, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, लाई के लिए है, लारमा के लिए है, खासी हिल्स के लिए है, गारो हिल्स के लिए है, जयंतिया हिल्स के लिए और टीटीएडीसी के लिए है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा के संग कैसे हो सकता है, बोडो के लिए है। तो मैंने कहा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये तो एकदम मतलब कि बेबुनियाद स्टेटमेंट है, आप इसको सीरियसली ना लें। तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को, क्योंकि इतना जब बड़ा लीडर इतना सीनियर इतना मतलब कि हाई रैंकिंग लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो हमें तो क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैंने ये बात उनसे दिल्ली से बात करके मुझे लगा कि इतने रात में भी आपको क्लैरिफाई करना कि ये इलेक्शन से लिंक नहीं है और ये जो 125th अमेंडमेंट बिल अगर कभी भी लागू होगा तो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, एक दिन एक संग एक ही टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू होगा। तो आई थिंक दैट, और दे वर शॉक्ड, उनको भी लगा कि ये ऐसा आप मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो भी बोले कि नहीं